وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فکر نہیں کرو، جو رب چاہے گا وہ ہوئے گا. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے ہم نے بار بار بات کی تھی کہ جموں کشمیر کے اندر سیاستوں کے اندر اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک بات بھی بالکل صحیح مانی جاتی ہے کہ اس وقت ناقدین کی نظریں جموں کشمیر پر ہی ٹکی ہوئی ہیں، اور جموں کشمیر کو لے کر کے سیاستوں کے اندر پھیر بدل اور اس کے ساتھ ساتھ جو دو بڑے ڈویژنز ہیں، چاہے ہم کشمیر ڈویژن کی بات کرتے ہیں، جموں ڈویژن کی بات کرتے ہیں، ہر جگہ پر سیاسی مزاج بالکل ہٹ کے ہیں، اور ان مزاجوں کو لے کر کے یہاں پر سیاستیں بھی اب پنپنی شروع ہو گئی ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی جس انداز میں اس وقت اپنا جال پھینک رہی ہے، اور اس جال کے اندر کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی موٹی مچھلی ان کے جال میں پھنس کے آ ہی جاتی ہے، اور اس طرح سے جو ایک خیال تیار کیا جا رہا ہے جموں کے اندر کہ جموں کے ساتھ آج تک سیاسی یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ مہاراجہ گلاب سنگھ سے لے کر کے ہری سنگھ کی بات کرتے ہیں، سب کے دور میں یہ ایک پرنس اسٹیٹ ہوا کرتی تھی، اور جموں کشمیر جو تھا وہ جاگیر ہوا کرتی تھی ڈوگروں کی، اور اس چیز کو لے کر کے صاف واضح کر دیا گیا بار بار بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے، RSS کی طرف سے، اور ان کے ہم خیال لوگوں کی طرف سے کہ جموں کے ہاتھ میں کبھی بھی جموں کشمیر کی باغ ڈور نہیں آئی، اور شیخ محمد عبداللہ سے لے کر کے آج تک جتنی بھی سیاستیں چلی ہیں وہ کشمیر سینٹرک ہی رہی ہیں، جس کو لے کر کے جموں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور جموں اب کے بار پیچھے نہیں رہے گا. سن 2019 5 اگست کو لیے گئے فیصلے کے بعد یہاں جموں کشمیر کے اندر سیاسی تغیر و تبدل ایک معمول کی بات بن گیا ہے، اور اس طرح سے اپنی پارٹی بھی وجود میں آئی، اور سجاد غنی لون کی پیپلز کانفرنس میں بھی پے در پہ لوگ چلے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کئی جماعتیں ایسی ہیں جن کو لے کر کے کئی سوالات بھی ابھر رہے ہیں. PDP کو دو پھاڑ کرنے کی بھی کوئی کوشش ایسی نہ تھی جس کو باقی چھوڑا گیا، لیکن PDP ایک بار پھر چناؤ خطے سے لے کر کے جموں کشمیر تک کسی نہ کسی جگہ پر اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور اس طرح سے PDP کے صدر ہر جگہ پر آج آپ کو متحرک ہی نظر آتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑی بات ہے، وہ یہ کہ سیاست میں نہ کسی کا کوئی مستقل دوست ہے، نہ کوئی مستقل دشمن ہے، جس کسی کے بھی ہے اپنے سیاسی فائدے ہیں. آپ کسی بھی لیڈر کو 50 لاکھ ووٹ دے دیجئے، کل کی تاریخ میں اگر اسے لگتا ہے کہ اس کے ذاتی مفادات جو ہیں وہ کسی اس جماعت کے اندر موجود نہیں ہیں جس جماعت کے ذریعے اس نے 50 لاکھ ووٹ بھی لیے ہوں گے، وہ آپ کے ووٹوں کو یکسر ایک پردے میں چھوڑ کر کے خود جا کر کے کسی محفوظ علاقے میں بیٹھ جائے گا، جس کو لے کر کے کئی ایک جگہ پر سیاستیں ہچکولے کھا ہی لیتی ہیں، اور اس طرح سے کئی جگہ پر لیڈران کی خرید و فروخت بھی ہو ہی جاتی ہے. بیچاری عوام کس کے پاس جائے؟ عوام کے پاس راستے بڑے محدود ہوتے ہیں. لیکن سن 2019 کے فیصلے کے بعد یہاں جب ریاست کی تقسیم ہو گئی، اور اس طرح سے جموں کشمیر کو یونین ٹیریٹری میں بدلا گیا، لداخ کے اپنے مفادات ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی جموں کے لوگوں نے سوچا کہ گپکار ڈکلیریشن بننے کے بعد کیوں نہ جموں ڈکلیریشن ٹائپ پہ ہم خیال لوگوں کو ساتھ چلایا جائے. دیویندر رانا بھی اس سب میں شامل رہے. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کو دے دیتا ہے، جس کو ذلت دے اس کو ذلت دے دیتا ہے. ایک قرآنی آیت انہوں نے پڑھ کر کے اپنے ورکران کے بیچ میں سنائی، اور ان کو جذباتی کر کے انہوں نے کہا کہ کچھ گھنٹے کے بعد وہ کسی دوسری جماعت کے اندر چلے جائیں گے، اور پھر دوسرے صبح ہی وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈ کوارٹر پہ نظر آئے، اور اس طرح سے وہاں پر انہوں نے ایک بڑے اس تقریب کے اندر اپنے آپ کو واضح کر دیا کہ وہ جموں کی خاطر اپنی سیاسی قربانیاں دے کر کے بھارتیہ جنتا پارٹی کے اندر آ گئے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو جموں کو اپنا وقار واپس دے سکتی ہے. کل تک یہی دیوندر رانا یہ کہا کرتے تھے کہ یہاں پر صرف دو لوگ ہی بچے ہیں، ایک وہ ہے جو دیش دروہی ہے، اور دوسرا وہ ہے جو دیش بھکت ہے. یعنی کہ دیش بھکت وہ ہے جس نے یہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی بات سنی، اور جس نے بات نہیں سنی وہ دیش دروہی ہو گیا. خیر، اس مباحثے میں نہ جاتے ہوئے آپ کو یہ بات بھی بتائے دیتے ہیں کہ عمر عبداللہ نے بھی دی وائر کو ایک خصوصی انٹرویو کے اندر یہ بتا دیا کہ سیاست کے اندر کوئی کسی کا پرماننٹ دوست نہیں ہوتا.
सिलेक्टिव किलिंग्स के हवाले से साइडलाइंस पर बोलते हुए उन्होंने इस बात का भी इजहार कर दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर देवेंद्र राणा के जाने से उन्हें जाती तौर पर नुकसान पहुंचा, क्योंकि उनको लगता है कि जितना देवेंद्र राणा के लिए उन्होंने जाती तौर पर कुर्बानियां दी हैं किसी दूसरे लीडर ने आज तक नहीं दी होंगी, लेकिन उन्हें अपने आप को यहां पर महफूज समझना या उनको नामुकम्मल नजर आना वो उनकी अपनी जाती मर्जी हो सकती है। पार्टी छोड़ के चले गए, पार्टियों में ये चीजें आती रहती हैं और इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर इस तरह के मामला ये कह सकते हैं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर से ही चलते आए हैं। पीडीपी का हाल भी यही है और इस तरह से कांग्रेस के अंदर से भी कई एक दिग्गज लीडर जो हैं अब बाहर निकलने के मूड में नजर आते हैं और कश्मीर खित्ते के अंदर ये आपको साफ कर देते हैं कि यहां पर भी कई एक इस तरह के कॉर्पोरेटर्स हैं, कई एक ऐसे लोग हैं जो अंदर ही अंदर से पाल तोड़ रहे हैं कि किसी तरीके से वो लोग भी जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला रहे हैं। गो इससे साफ पता चल जाता है कि 50 सीटों का जो दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो अपने एजेंडे पर मुकम्मल तरीके पर लंगर लंगोटा कस करके आगे चल रहे हैं। उसके चलते यहां की रीजनल पार्टीज के अंदर क्या कुछ पोजीशन रहेगी, ऐसा लगता है कि अगर चुनाव बहुत जल्द हो जाते हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर होते हैं, तो यहां के इंतखाबात किसी भी धमाके से कम नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर उछल कूद इतनी ज्यादा इंतखाबात के अंदर रहेगी कि हर घर के अंदर से एक पार्टी निकलती हुई नजर आएगी। लेकिन जब इंतखाबी नताइज सामने आएंगे तो गुब्बारों से हवा निकलनी शुरू हो जाएगी और इस तरह से यहां की रीजनल पार्टीज को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पीएचडी के अंदर से भी कई जमातों के लीडरान खुद ब खुद निकल गए और दूसरी जमातों की जोलियों में जाकर के खुद ही बैठ गए। अब आगे क्या कुछ होगा इस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। फारूक अब्दुल्ला ने भी इस हवाले से बात की कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात को नामसाइद होते देख वो भी दिल आज़रदा हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी हैं। इसी तरह से अगर जनरल डीपी पांडे की बात करें, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार कुछ ऐसे ही किया कि जम्मू कश्मीर के लोग खुद इस वक्त सिलेक्टिव किलिंग्स को लेकर के और आए रोज की हलाकतों को लेकर के परेशान हैं। इन मामलों पर अब कश्मीर के अंदर बात होती है, जम्मू के अंदर बात होती है। इसका मतलब है कि लोग भी तशद्दुद से बाहर निकल के अमन अमान की जिंदगी चाहते हैं। क्या कुछ फारूक अब्दुल्ला ने अपने ख्यालात का इजहार किया और देवेंद्र राणा के हवाले से कहा कि पार्टी के अंदर लोग आएंगे जाएंगे, इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। रद्द-ए-अमल बहुत धीमा था, लेकिन क्या कुछ कहा आपको दिखाई देते हैं। इनका मुकाबला करना है, हम सब ने हिम्मत से रहना है और डरना नहीं है इनसे। ये कभी कामयाब नहीं होंगे, जो भी ये सोचते हैं उसमें ये फेल हो जाएंगे। मगर हमने मजबूती से खड़ा होना है, सब ने, मुसलमान ने, सिख ने, हिंदू ने, ईसाई ने, जो भी हम हैं, हम लोगों को इकट्ठे खड़े होकर इनका मुकाबला करना। ये एक सिलसिला चल रहा है, सारे हिंदुस्तान में एक तूफान पैदा हो रहा है, मुसलमानों को और हिंदुओं को और सिखों को बांटा जा रहा है। और ये जो बांटने की सियासत है इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। और अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो हमने इकट्ठे रह कर रहना है और तभी हिंदुस्तान आगे चलेगा। जमात में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसी तरह से नाज़रीन इकराम आपको यह बात भी बता देते हैं कि जनरल डीपी पांडे की तरफ से दिए गए बयान को नाकदीन काफी ज्यादा वजनदार मानते हैं, क्योंकि सिलेक्टिव किलिंग्स को लेकर के जम्मू कश्मीर के अंदर सिखों के साथ और पंडितों के साथ हर किसी ने इंसानी हमदर्दी का इजहार किया और हर किसी ने अफसोस का इजहार भी किया। लेकिन लोग ये भी मानते हैं कि 21 सिविलियन हलाकतों के बारे में भी जो मुसलमानों की हुई उन पर भी जम्मू के अंदर भी बात होनी चाहिए और कश्मीर के अंदर भी बात होनी चाहिए। सिलेक्टिव बात करके हम किसी एक तबके या फिरके की बात नहीं कर सकते, इंसानियत को बचाने की जरूरत है। जो ये किलिंग्स हैं निहायत ही कंडेमेनेबल है और मुझे यकीन है कि जो हमारी कश्मीरी सोसाइटी है उसके इन लोगों के पीछे खुद लगेगी और यकीन करेगी कि एक्सपोज हैं ऐसे लोग जो हमारे इस प्यारे से कश्मीर के अंदर कम्युनल दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, एक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि पिछले 5-6 महीने, एक साल के अंदर कितनी एक्टिविटीज हो रही हैं जो एक पॉजिटिव दिशा के अंदर है। जाहिर है जब पॉजिटिव दिशा के अंदर ऐसी एक्टिविटी होंगी, जो हमारे देश के दुश्मन है, हमारे अवाम के जो दुश्मन है, उनके दिल के अंदर जलन होती है और ये सब उसको उकसाने की कोशिश करी जा रही है। मुझे यकीन है कि आप सब और आपके माध्यम से जितनी भी कश्मीरी पॉपुलेशन है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, मैं इन सब फर्क को नहीं मानता। मुझे यकीन है कि आप सब एक बराबर हैं और आप इस चीज को समझेंगे और यकीनन एक दूसरे का साथ देकर के हमारे देश के दुश्मनों को
जहां से बेनकाब करेंगे। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको ये बात भी बताई देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरी तरफ सियासी उथल पुथल भी जारी है और इस उथल पुथल के बीच में मरकजी वज़रा जो है वो किसी भी तरीके से अपने पर्दे को ज्यादा धीमा नहीं होने दे रहे हैं और इस तरह से जम्मू कश्मीर के दौरे पर हर दिन कोई ना कोई यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यहां पे आता है या MOS आता है और इस तरह से लोगों के मफादात को, लोगों के मामलात को सुनने के लिए, देखने के लिए जरूर पहुंचता है और कई एक कामों का उद्घाटन भी होता है, कई नई स्कीमों का आगाज भी किया जाता है और नौजवानों को हाथ में लेने की कोशिशें भी की जा रही है। इस हवाले से आपको यह बात भी बताई देते हैं कि पीर पंचाल डिवीजन की बात करते हैं या राजौरी पुंछ की बात करते हैं तो वहां पर भी अकलियती अमूर को लेकर के या अकलियतों के मामलों को लेकर के सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने के लिए जो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की दहलीज से वादा किया था, उसको पूरा करने के हवाले से या उस बात को हतमी शक्ल देने के हवाले से कुछ लीडर ने आकर के राजौरी पुंछ में बात की और लोगों का यह मानना है वहां पर कि उनकी बात को सुना जाएगा और उन्हें पूरा यकीन है कि वजीर आज़म अपना वादा पूरा करेंगे। उसी दूसरी तरफ जाकर के आप देखिए कि समाज के दूसरे तबकों की जब बात होती है तो वहां पर भी कई एक जगह पर कई एक तकरीबात नजर आती हैं, लेकिन क्या कुछ जम्मू के अंदर और राजौरी पुंछ के अंदर इस मामले पर लोगों का कहना है? कुछ झलकियां आपके लिए। सबसे पहले मैं मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और हमारे जम्मू कश्मीर में 70 मिनिस्टर को एक भेजने का इनिशिएटिव लिया। इससे हमें एक अच्छा मिलेगा कि हम लोग भी आगे आ सकते हैं, हम लोग भी अपनी बात रख सकते हैं और हमारी बात भी केंद्र तक पहुँच सकती है। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ मैडम का कि मैडम आए, उन्होंने बात रखी और हमारी बात भी सुनी और उन्होंने इंश्योर किया कि वो हमें पहाड़ी स्टेटस दिलाएंगे। ये कहने के लिए आए हैं कि आप प्रधानमंत्री साहब को ये हमारी तरफ से जो है उनको रिक्वेस्ट कीजिएगा कि जो आपने लाल किले में 15 अगस्त 2019 को यहाँ के पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ जो वादा किया है, मोहतरमा मैं पहले बताना चाहूंगा कि ये पहाड़ी कबीले के लोग क्या हैं। मोहतरमा बात इस तरह से है कि जो ये हमारा जम्मू कश्मीर है इसमें जो है डिफरेंट एरियाज हैं, जैसे कश्मीर है और साथ साथ जो है ये जम्मू का जो ये इलाका है। तो इसके इलाके का जो जम्मू है इसके इलाका जो पहाड़ के साथ साथ जो होता है जिसमें आपका ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट, पुंछ डिस्ट्रिक्ट, हमारा उड़ी, करना और ये जो करनाल का जो इलाका है जो पहाड़ के साथ और जो बॉर्डर के साथ टच होता है, यहाँ के जो लोग हैं इनको पहाड़ी कहा जाता है और ये कबीले के लोग हैं। इनकी बड़ी एक पुरानी मांग ये थी कि इनके एजुकेशन के हिसाब से ये बड़े वीक हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, जहां आपने देखा कि एक तरफ हालात को लेकर के जहां पर जनरल DP पांडे ने बात की, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत का भी ये मानना है कि समाज के हर फिरके, हर तबके तक पहुंचने की जरूरत है और इस हवाले से किसी भी फिरके या तबके को या किसी भी ऐसी चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो इस धरती के ऊपर यानी कि जम्मू कश्मीर में रहते हों। इस हवाले से स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए यहां बारामुल्ला के अंदर एक तकरीब रखी गई थी जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने जाकर के वहां पे कई एक खेलों का आगाज भी किया, तंगों से भी नवाजा, ट्रॉफियां भी दी और यह भी उम्मीद जताई कि अगर इन बच्चों को और इस तरह के जिस्मानी तौर नाखैज खास अफराद के लिए हुकूमत जो काम कर रही है अगर ये लोग दिलचस्पी दिखाएं तो इंटरनेशनल लेवल तक जाकर के अपना सिक्का मनवा सकते हैं। तकरीबात के हाशिए पे कुछ एक बातें आपके लिए। Tail is the call and देखिए हमारे फिजिकल कॉलेज सज्जाद अहमद, मुदस्सिर अहमद, आमिर इरशाद, और चैलेंज को कंप्लीट और नाज़रीन चलते चलते आपको यह बात भी बता देते हैं कि नौजवान इस वक्त कसम पुर्सी का शिकार है, किसी न किसी पर जगह पर जाकर के
एक्सप्लॉइट हो ही जाते हैं और बहुत ही बुरी मुसीबत में फंसे हुए हैं। समाज के अंदर एक इस तरह का सर्वे भी आया है जिसमें यह बताया गया है कि आबादी में जो जवानों का 66% हिस्सा है किसी न किसी तरीके से वो बुरे कामों में जाकर के मुलविस हो रहा है। एक खुसूसी रिपोर्ट के साथ कल होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। जरूर उस तकरीब को भी देखिएगा और उन ख्यालात को भी देखिएगा कि नौजवानों के ऊपर जो कुछ भी इस वक्त बीत रही है, नाजायज फायदा कौन लोग उठा रहे हैं। लेकिन हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके ख्यालात हमारे लिए काफी ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुदा हाफिज़ नाज़रीन।